Very good morning, everyone. In last class, I have provided you 10 fill-ups for your practice activity, right? I have provided you 10 fill-ups covering the topics we have completed up to our last class. So today, firstly, we are going to discuss the answers of those questions. Then after, we will start our next topic. So have a look. Here are the first two fill-ups for you. Those who know the answer are supposed to raise their hands. Fill-up number 1. Double coincidence of bonds is an essential feature of dash exchange. कौन से exchange का essential feature है double coincidence of bonds? Okay, so here I can see many of the students are ready to give the answers. So Suryansh will give the answer. Yes, Suryansh. Good morning, ma'am. Very good morning, beta. Barter system. Yes, barter system of exchange. Very good. Double coincidence of bonds, it is basically an essential feature of barter system where people need commodities for exchanging another commodities. Very good, Suryansh. Okay, next one. Who will give the second answer? The money deposited in bank which can be withdrawn anytime during demand are known as. इस आएगा यहाँ पे R की जगह R लिखा हुआ है. गर्व गुप्ता विल गिव द आंसर. लोग आप सभी ने हैंड रेज किया है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बट चांस एक दो बच्चों को ही मिलेगा, तो हमें तो खुद का स्कोर चेक करना है. आप अपने स्कोर्स चेकआउट करते रहिए कि आउट ऑफ 10 आपको कितना स्कोर मिल रहा है. यस गर्व. Ma'am, the answer is demand deposits. Demand deposits, very good. The money which we deposit in our bank, which we can withdraw anytime by demanding it, is known as demand deposit. Okay, that's great. Next question. Dash and dash are included in modern forms of money as currency. Dash and dash are included in modern forms of money, currency के form में. Who will give the answer? चलिए, I can see many of you are ready. Lucky draw तो एक ही बच्चे का निकलेगा है ना. चलिए, Sonia Modi will give the answer. Yes, Sonia. Coins and notes. Yes, paper coins and paper notes and coins. Very good. Coins. So two answers I have get for question number 3. Paper notes and coins are included in the modern forms of money. Okay, next question. Formal sector of credit includes loans from dash and dash. Formal sector जो है उसमें किस किस से loan included होता है? Okay, Bhavi Jain will give the answer. Ma'am, banks and cooperatives. Yes, very good. Banks and cooperative societies are included in formal sector and these are the two groups which are giving loan. तो चलिए 4 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं. नेक्स्ट वन. आई होप आप सबको मजा आया होगा ये फिलअप्स करके. Loans from dash sector are available generally at a high rate of interest. कौन सा सेक्टर है जिसके लोन बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे अवेलेबल होते हैं? आशीष चौधरी will give me the answer. Yes, Ashish. Yes, ma'am. Informal sector. Informal sector, very good. Informal sector ऐसा है जिसके loans बहुत ही high rate of interest पे available होते हैं. Okay, next one. Dash is the organization present for supervising the functioning of formal sources of loan. Formal sources को supervise करने वाली organization. Mayank Jain will give the answer. Good morning, ma'am. Very good morning, beta. Ma'am, Reserve Bank of India. Very good. Reserve Bank of India. RBI is the organization which is present for supervising the functioning of formal sources of loan. Okay, next one. Collateral is an asset given by dash to the lender as a security. Collateral एक asset है जो dash individual देता है lender को in the form of security. What is the answer? Okay, Divyansh will give the answer. Yes, Divyansh. Borrower. Borrower, very good. Collateral is basically the asset which the borrower यानी कि जो loan ले रहा है, he gives to the lender. It means the person who is providing the loan as a security. Okay, beta, mute yourself. Next, in rural areas, the main demand of credit is for dash. Rural areas में basically credit की demand रहती है किस चीज के लिए? Atul will give the answer. Yes, Atul. Good morning, ma'am. Very good morning to you.
मैम क्रॉप कल्टीवेशन। क्रॉप कल्टीवेशन, वेरी गुड। अगर हम बात करें रूरल एरियाज की, तो पीपल नीड क्रेडिट फॉर क्रॉप कल्टीवेशन। सारे फिलअप्स आपकी बुक की जो लाइंस है ना, जो सेंटेंसेस है, वहीं से निकाले गए हैं। ओके, नेक्स्ट वन, मनी सर्व्स एज अ मीडियम ऑफ डैश। मनी किस चीज का मीडियम होता है? द आंसर विल बी गिवन बाय मंजीत। यस मंजीत। Good morning, ma'am. वेरी गुड मॉर्निंग बेटा। Ma'am, money serves as a medium of exchange. Very good. Money serves as a medium of exchange. Next one. Dash refers to an arrangement in which the lender supplies the borrower with money or goods or services in return for a promise for future payment. कौन सा अरेंजमेंट होता है जिसमें लैंडर बोरोवर को अलाउ करता है कि आप फ्यूचर पेमेंट करके अभी चीजें ले सकते हैं? यस दिया। मैम क्रेडिट एंड लोन। Credit and loan, very good. Credit or loan refers to the arrangement where lender supplies the borrower with the money or goods and services, right? चलिए, अब मुझे thumbs up करके बता दीजिए who all scored above 8. Above 8 किस किस के मार्क्स आए वो बच्चे thumbs up करें जरा, या हैंड रेज भी कर सकते हैं। ओके, वेरी गुड। चलो अब ईमानदारी से वो बच्चे करें जिनके बिलो 5 आए, एकदम ईमानदारी से, है ना, किसी से नहीं छुपाना है हमें कुछ भी। बिलो 5 किस किसने स्कोर किया? चलिए, ओके, दैट्स गुड कि आप लोग लॉयल हैं। कुछ बच्चों ने अच्छे से बताया कि हाँ हमें बिलो 5 की स्कोर मिला। चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम हम और अच्छा करेंगे। चलिए, कौन कौन चाहता है कि ऐसे फिलअप्स आपको फॉरवर्ड करती रहूं ताकि आपकी प्रैक्टिस होती रहे? ठीक है, अगर आपके लिए बेनिफिशियल है तो ही हम ये काम करें, है ना? ओके, दैट्स अमेजिंग, ऑलमोस्ट ऑल द स्टूडेंट्स वांट दिस। चलिए भाई, तो जैसे जैसे हम टॉपिक्स करेंगे आपके लिए मैं प्रैक्टिस एक्टिविटीज बनाती जाऊंगी ताकि आपकी प्रैक्टिस जो है वो अमेजिंग वे में हो सके। नाउ आई होप अभी तक हमने जितना पढ़ा है वो टॉपिक आप सबको क्लियर होगा। I am sharing the screen of chapter with you so that we can complete our chapter. We can move to the next topics of our chapter, right? Have a look. It will take few seconds. I'm sharing the screen with you. I'm sharing the chapter with you. Just be patient. Okay, for once I'm lowering down all your hands, okay? Have a look now. If you want to ask something, you can raise your hand. There is no issue. In case you want to ask anything, you can raise your hand. Pranav want to ask something. Yes, Pranav, unmute and ask. Yes, ma'am. Ma'am, in third question, dash and dash are included in modern forms of money as currency. मैम इसमें कार्ड्स एंड चेक्स भी तो आ सकता है। हाँ, कार्ड्स एंड चेक्स आ सकते हैं, बट वो सेकेंड नंबर पे। सबसे मेन, अगर हमें 2 ही फिलअप दिए हुए हैं तो हमें आंसर लिखने होते हैं जो सबसे ज्यादा सुटेबल है। तो सबसे ज्यादा मीडियम कौन सा है? सबसे ज्यादा जो करेंसी के फॉर्म में यूज हो रहा है वो है पेपर नोट्स एंड कॉइन्स, तो इसलिए आंसर वो हुआ। अगर ये कह देते कि which are the upcoming sources which are used by the people as modern forms of currency, then we can write checks and we can also write digital money, right? बट अगर मेन पूछ लिया तो मेन तो पेपर नोट और करेंसी ही है जिनको सबसे ज्यादा यूज किया जा रहा है। इज इट ओके? यस मैम, थैंक यू मैम। ओके प्रणव, चलिए देखिए, ये वाला टॉपिक हमने सारा डिस्कस कर लिया था। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कैसे फॉर्मल सेक्टर का क्रेडिट इंडिया में आ रहा है और इनफॉर्मल सेक्टर क्या होता है। आरबीआई वो है जो फॉर्मल सेक्टर को कंट्रोल करता है। ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी और हमने पढ़ा था इनफॉर्मल सेक्टर को कंट्रोल करने के लिए कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। इनफॉर्मल सेक्टर वाले जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं और उनकी कोई वो वापस अपना मनी रिकवर करने के लिए कोई भी मेजर्स यूज कर सकते हैं। उनके ऊपर कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती जो उनको कंट्रोल कर रही होती है। फिर हमने ये चार्ट डिस्कस किया था कि अगर हम फॉर्मल सेक्टर की बात करें तो बेसिकली फॉर्मल सेक्टर रिच पीपल के लिए, जिनके पास वेल ऑफ रिसोर्सेज है, क्योंकि फॉर्मल सेक्टर मांगता है सिक्योरिटी एज अ वी कैन से असेट एज अ सिक्योरिटी। तो असेट तो देने के लिए रिच सेक्शन के पास ही होती है, पुअर्स के पास तो होती नहीं है। तो ये चार्ट तक हमने डिस्कशन अपना कर लिया था।
आज का हमारा जो टॉपिक है वो देखिए, हमें पहले तो इसी के बारे में, ये जो लास्ट डिस्कशन हमारा रहा था ये हमें कंप्लीट करना है। ये देखिए क्या लिखा हुआ है, ये वाला टॉपिक हमने नहीं लिया था लास्ट क्लास में। Most loans from informal lenders carry a very high rate of interest and do little to increase the income of borrowers. ये कह रहे हैं मोस्टली टाइम इनफॉर्मल लैंडर्स जो होते हैं उनका सिर्फ एक ही काम होता है, दे चार्ज अ हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम द बोरोवर एंड दे डू नॉट मोटिवेट द बोरोवर टू इंक्रीज देयर इनकम। वो उनके लिए कुछ भी नहीं कर रहे होते हैं। Thus, it is necessary that banks and cooperatives increase their lending, particularly in rural areas, so that dependence on informal sources of credit reduces. कि जरूरी है कि इनफॉर्मल सेक्टर्स को पीछे करने के लिए फॉर्मल सेक्टर ग्रो हो, बैंक्स और कोऑपरेटिव सोसाइटीज रूरल एरियाज में अपनी लैंडिंग को इंक्रीज करें। सेकेंडली, while formal sector loans need to expand, it is also necessary that everyone receives these loans. कि हर पर्सन ये लोन रिसीव कर पाए, ये भी जरूरी है। प्रेजेंट टाइम में सिर्फ रिचर हाउस होल्ड रिसीव कर रहे हैं, पुअर की रीच में ये नहीं है, तो ये जरूरी है कि ये इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन इसका हो, राइट। अब देखिए यहाँ पे सेल्फ हेल्प ग्रुप, नाम से ही क्या पता चल रहा है, सेल्फ हेल्प, खुद की हेल्प करने वाले ग्रुप्स, ऐसे ग्रुप जो आपस में खुद की ही मदद कर लेते हैं। सो जस्ट हैव अ लुक. In the previous section, we have seen that poor households are still dependent on informal sources of credit. Why is it so? Banks are not present everywhere in rural areas. Even when they are present, getting a loan from bank is much more difficult than taking a loan from informal sources. ये कह रहे हैं कि last section में you have discussed that rural people and poor people basically are still taking loans from informal sector. Now a question must arise कि ऐसा क्यों हो रहा है? Even when formal sector loans are available at cheaper rate of interest, why people are just taking loan from informal sector? तो यहाँ पे आपको reason बताया हुआ है. Reason number 1 कि इनफॉर्मल सेक्टर के कंपैरेटिवली फॉर्मल सेक्टर से लोन लेना थोड़ा टफ होता है, पेपर वर्क थोड़ा ज्यादा होता है, फॉर्मेलिटीज थोड़ी ज्यादा होती है, और इसके अलावा इनफॉर्मल सेक्टर में लोन बहुत इजीली मिल जाता है। प्लस हर एरिया में, अब तो ऐसा नहीं है, अब तो रूरल एरियाज में भी बैंक की ब्रांचेस स्प्रेड हुई है, लेकिन इनिशियली इंडिपेंडेंट इंडिया की बात करें तो हर रूरल एरिया में, हर विलेज में बैंकिंग फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं थी। तो यहाँ पे देखते हैं, सूर्यांश वांट टू आस्क समथिंग। यस सूर्यांश, यू कैन अनम्यूट एंड आस्क। यस मैम, मेरा डाउट ये था कि मैम जो पीपल्स होते हैं वो लोन लेते हैं, तो बैंक से उन्होंने लोन लिया तो वो अपना लोन पूरा नहीं कर पाते, तो गवर्नमेंट कुछ स्कीम चलाती है कि उनका लोन माफ कर दिया जाए। तो अब जो बैंक्स का जो पैसा है वो उनको गवर्नमेंट देती है या बैंक लॉस में चलते हैं? बेटा देखिए, गवर्नमेंट ये लोन माफ वाली स्कीम बेसिकली तभी अनाउंस करती है पॉलिसी जब गवर्नमेंट को लगता है बहुत नेसेसरी हो गया। जैसे इंडिया में फार्मिंग के केस में ऐसा हुआ था, एग्रीकल्चरल क्रेडिट लोगों ने ले लिया बट प्रॉपर फार्मिंग नहीं हो पाई, प्रॉपर वेदर नहीं रहा और भी बहुत सारी प्रॉब्लम रही। अब इससे क्या हुआ, फार्मर्स ने सुसाइड करनी शुरू कर दी। तो जब सुसाइड करनी शुरू की तो गवर्नमेंट ने इंस्ट्रक्शन दिया कि भाई जो लोन है माफ कर दिया जाए, राइट। तो ऐसे में लॉस बियर सारा का सारा सिर्फ बैंक नहीं करेगा, दोनों का कॉम्बिनेशन होगा। गवर्नमेंट बैंक्स को कुछ फाइनेंशियल रिसोर्सेस प्रोवाइड करती है टू कवर द लॉस। और अब मैक्सिमम केसेस में अगर नॉन फार्मिंग सेक्टर में ऐसा होता है तो वैसे में बैंक को कोई भी लॉस फेस करना ही नहीं पड़ता, क्योंकि बैंक पहले से एसेट मॉर्गेज रख लेती है। मैक्सिमम केसेस में बैंक के पास किसी इंडिविजुअल की कोई एसेट रखी हुई होती है, तो अगर वो इंडिविजुअल लोन रीपे नहीं कर पा रहा तो फिर बैंक क्या करेगी, उस एसेट को सेल आउट करके वो मनी रिकवर कर लेगी, तो बैंक को एक्चुअली लॉस होगा ही नहीं। इज इट ओके सूर्यांश? ओके, चलिए आगे देखिए। नाउ व्हाट इज रिटन ओवर हियर? एज वी सॉ फॉर मेघा, मेघा कौन थी, जिसने अपना नया घर परचेज करना था, राइट। तो बैंक लोन्स रिक्वायर प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स एंड कोलेटरल। हमने मेघा के केस में देखा कि उसको अपनी इनकम टैक्स की फाइल भी रखनी पड़ी और उसको अपने न्यू होम के पेपर भी सिक्योरिटी के फॉर्म में रखने पड़े। Absence of collateral is one of the major reasons which prevents the poor from getting bank loan. हो सकता है अगले फिलअप्स में मैं ये दे दूं आपको। Absence of dash is the major reason. किसकी एब्सेंस? कोलेट्रल की एब्सेंस, यानी एसेट की एब्सेंस की वजह से ही पुअर पीपल कहाँ जाता है, इनफॉर्मल लैंडर के पास। Informal lenders such as money lender on the other hand knows the borrower personally and hence are often willing to give loan without collateral.
ये जो लैंडर्स होते हैं ना, मनी लैंडर्स हो गए या इनफॉर्मल सेक्टर वाले लोग हो गए, ये बोरोवर को पर्सनली जानते हैं, तो ये उसको ना बिना एसेट के भी लोन दे देते हैं कि कोई एसेट मॉर्गेज रखने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे भी लोन ले सकते हो, ठीक है, आपको कोई एसेट मॉर्गेज नहीं रखनी पड़ेगी। आगे देखिए व्हाट इज रिटन ओवर हियर। The borrowers can, if necessary, approach the moneylenders even without repaying the earlier loans. यानी ऐसा भी हो सकता है कि आपने पुराना लोन नहीं रीपे किया और आपको फिर पैसे की जरूरत है, तो आप दोबारा मनी लैंडर को अप्रोच कर सकते हो। However, the money lenders charge very high rates of interest, keep no records of transaction and harass the poor borrower. कि ये जरूर है कि मनी लैंडर कोई रिकॉर्ड नहीं रखता, वो पुअर बोरोवर्स को हैरस करता है, वो उनसे हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करता है और पूरी तरीके से उसको एक्सप्लॉइट कर देता है। In recent years, people have tried out some newer ways of providing loans to poor. The idea is to organize rural poor in a particular women into small self-help group and pool. Pool means collect their savings. ये कह रहे हैं recent time में लोगों ने बहुत सारे नए नए तरीके चुने जिससे रूरल पीपल को हेल्प की जा सके, जिसमें सबसे ज्यादा सक्सेसफुल जो है वो है सेल्फ हेल्प ग्रुप, पर्टिकुलरली वुमेन्स के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए जाते हैं, जिसमें लोगों को कहा जाता है अपनी थोड़ी थोड़ी सेविंग्स को कलेक्ट करो, इकट्ठा करो, ठीक है। एक टिपिकल सेल्फ हेल्प ग्रुप में बेसिकली 15 to 20 मेंबर्स होते हैं, 15 to 20 मेंबर्स, जो आसपास के पड़ोस वाले जैसे लोग आपस में मिल गए, जो रेगुलरली मिलते हैं और थोड़ा थोड़ा पैसा सेव करते हैं। ये सेविंग, ये इनिशियल की बात हो रही है 1960s 70s की बात, कि ये सेविंग 25 रुपीज से 100 रुपीज तक हो सकती है या उससे ज्यादा भी हो सकता है, लोगों की एबिलिटी पे। कितना सेव आप कर सकते हो ये डिपेंड करता है आपकी अर्निंग पे, राइट। तो लोगों की एबिलिटी पे डिपेंड करता है। Members can take small loans from the group itself to meet their needs. यानी अब लोगों को मनी लैंडर के पास नहीं जाना पड़ेगा, जो लोग इस ग्रुप के मेंबर बन गए ना, वो क्या कर सकते हैं, लोन इसी टीम से ले सकते हैं, इस ग्रुप से वो लोन ले सकते हैं, वो बोरो कर सकते हैं। आगे देखिए, the group charges interest on these loans, but this is still less than what the money lender charges. यहाँ भी इंटरेस्ट चार्ज होगा, बट इंटरेस्ट की रेट काफी कम रहेगी। मनी लैंडर जो चार्ज करता है उसके कंपैरेटिवली बहुत लो इंटरेस्ट। आफ्टर अ ईयर और टू, इफ द ग्रुप इज रेगुलर इन सेविंग, इट बिकम्स एलिजिबल फॉर अवेलिंग लोन फ्रॉम द बैंक। अगर 1-2 साल में ये ग्रुप रेगुलर एक्टिविटीज कर रहा है तो अब ये बैंक से भी लोन ले सकता है, जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटी था ना, वैसे के वैसे। आगे देखिए, loan is sanctioned in the name of the group and is meant to create self-employment opportunities for the member. ये जो लोन होता है ना, ये ग्रुप की सभी मेंबर्स के नाम से बैंक इनको दे देती है, और ये लोन बेसिकली लोगों को दिया जाता है कि वो अपने स्मॉल बिजनेसेस सेटअप करें। जैसे आपने 9th क्लास में पालमपुर की एक्टिविटी में पढ़ा था ना, पालमपुर विलेज की स्टोरी में, कि जो विलेजेस होते हैं वहां पे क्या किया जाता है, छोटे छोटे स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग वर्क भी हो रहे हैं। तो ये जो लोन्स हैं जो सेल्फ हेल्प ग्रुप को मिलते हैं, ये बेसिकली बैंक एनकरेज करता है कि आप इनको यूज करके अपने लेवल पे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज ओपन करें, छोटे छोटे बिजनेसेस ओपन करें। फॉर इंस्टेंस, स्मॉल लोन्स आर प्रोवाइडेड टू द मेंबर्स फॉर रिलीजिंग मॉर्गेज लैंड, for meeting working capital needs such as buying seeds, raw materials, bamboo, clothes, etc. For housing material, for acquiring assets like sewing machine, handlooms, kettles, etc. कि ये लोन अलग अलग पर्पस से दिए जा सकते हैं। हो सकता है ये लोन हम स्मॉल हेल्प ग्रुप के लोगों को दे दे, सेल्फ हेल्प ग्रुप के लोगों को, कि अगर आपने मनी लैंडर को कोई लैंड दे रखी है तो आप इस लोन के मनी से उसको रिलीज करवा लीजिए, आप छोटी छोटी एसेट्स परचेज कर लीजिए, आप अपनी वर्किंग कैपिटल नीड्स को फुलफिल कर लीजिए। आगे देखिए, वेट फॉर अ सेकेंड। Yes, so we were on this page. क्या लिखा हुआ है? Most of the important decisions regarding the saving and loan activities are taken by the group member. Group member ही decide करते हैं कि किस purpose से हम borrow करेंगे. The group decides as regards the loan to be granted, the purpose, amount, interest to be charged, repayment schedule, etc.
कि कौन से मेंबर को कब किस पर्पस से लोन देना है, क्या इंटरेस्ट रखेंगे, कैसे रीपेमेंट हम रिसीव करेंगे, वो सारी चीजें ग्रुप के लोग मिलके डिसाइड करते हैं. ऑल्सो इट इज द ग्रुप विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रीपेमेंट ऑफ लोन. अगर बैंक से ले लिया है तो पूरे ग्रुप की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस लोन को रीपे करना. Any case of non-payment of loan by any one member is followed up seriously by other members in the group. अगर एक मेंबर लोन रीपे नहीं कर पाता तो इसको बहुत सीरियसली लिया जाता है बाकी मेंबर्स के थ्रू, क्योंकि सबका पैसा इन्वॉल्व है, राइट? Because of this feature, banks are willing to lend to the poor women when organized in self-help group, even though they have no collateral as such. ये कह रहे हैं इसी रीजन की वजह से बैंक जो है वो इन रूरल पीपल को, पुअर पीपल को, बेसिकली वुमेन्स को जो आपस में एक ग्रुप में मर्ज हो गई है, उनको इजीली लोन दे देता है, क्योंकि उनको बिना सिक्योरिटी के भी, क्योंकि बैंक को पता है एक बंदे ने अगर कुछ भी प्रॉब्लम की तो बाकी के लोग जो हैं वो कोशिश करके लोन को रीपे करने की कोशिश करेंगे. आगे देखिए. Thus the self-help group helps borrower to overcome the problem of lack of collateral. ये क्या कह रहे हैं? सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है वो बोरोवर्स को मदद करता है. कोलेट्रल की एब्सेंस में भी बोरोवर क्या कर सकता है? बैंक से लोन ऑब्टेन कर सकते हैं. तो अगर आपको पूछे इन विच केस पीपल कैन ऑब्टेन लोन फ्रॉम बैंक इवन विदाउट पुटिंग असेट एज कोलेट्रल, तो आपका आंसर होगा इन द केस व्हेन दे हैव ऑर्गेनाइज्ड एज अ सेल्फ हेल्प ग्रुप. अगर वो ऑर्गेनाइज हो जाएंगे सेल्फ हेल्प ग्रुप के फॉर्म में तो दे विल बी एबल टू ऑब्टेन द लोन. आगे देखिए. They can get timely loans for a variety of purpose and at a reasonable interest rate. लोग जो है वो टाइम पे लोन ले सकते हैं अलग अलग पर्पस के लिए और बहुत ही रीजनेबल इंटरेस्ट रेट पे. Moreover, self-help groups are building blocks of organization of the rural poor. Rural poor को help करने वाले ये building blocks है. Not only does it help women to become financially self-reliant, the regular meetings of the group provide a platform to discuss and act on variety of social issues such as health, nutrition, domestic violence, etc. ये कह रहे हैं ये ग्रुप केवल उनको क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए हेल्पफुल नहीं है. When rural women meet with each other, they are also able to discuss on various matters. वो अपनी कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स भी डिस्कस करते हैं जिनसे हो सकता है उनको उनकी प्रॉब्लम का कुछ सोल्यूशन भी मिल सके. प्रॉब्लम क्या क्या हो सकती है रूरल वुमेन की? हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स हो सकती है, डोमेस्टिक वायलेंस जो वो फेस कर रहे हैं वो सब हो सकता है. तो गुजरात में देखिए एक एग्जांपल दिया हुआ है, रूरल वुमेन बैठी हैं और आपस में सेल्फ हेल्प ग्रुप में डिस्कशन कर रही हैं. अब आगे देखिए. ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश एक एग्जांपल दिया हुआ है आपके लिए. Have a look. Grameen Bank of Bangladesh is one of the biggest biggest success stories in reaching the poor to meet their credit needs at reasonable rates. Started in 1970s, a small project, Grameen Bank in October 2014 has over 8.63 million members in about 81,390 villages spread across Bangladesh. Almost all of the borrowers are women and belong to the poorest sections of society. These borrowers have proved that not only are poor women reliable borrowers, but that they can start and run a variety of small income generated activities successfully. ये क्या कह रहे हैं? बांग्लादेश में ग्रामीण बैंक ओपन हो गया, सेल्फ हेल्प ग्रुप के फॉर्म से स्टार्ट हुआ था इन द ईयर 1970s और 2014 तक इसमें 8.63 मिलियन मेंबर्स हो गए और इसने ऑलमोस्ट हर गांव को कवर कर लिया. बांग्लादेश में जितने भी विलेजेस हैं उसमें से 81,390 विलेजेस कवर हो गए हैं आप देखिए. और जितने भी बोरोवर्स हैं वो बेसिकली वुमेन्स है जो पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी से बिलोंग करते हैं. और इन वुमेन्स ने ये प्रूव किया है कि ये केवल पुअर वुमेन नहीं है जो किसी और पे डिपेंड रह जाए. ये ऐसी वुमेन्स हैं जो अपना खुद का काम शुरू कर सकती हैं, अपनी खुद की इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज शुरू कर सकती है, बट ओनली व्हेन दे आर गेटिंग एनी फाइनेंशियल सपोर्ट. आगे देखिए. If credit can be made available to poor people on terms and conditions that are appropriate and reasonable, these millions of small people with their millions of small pursuits can add up to create the biggest development wonder. ये प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ने
द फाउंडर ऑफ ग्रामीण बैंक ने कहा, इनको नोबेल प्राइज फॉर पीस भी मिला इन द ईयर 2006। इन्होंने क्या कहा कि अगर पुअर पीपल को रीजनेबल टर्म्स एंड कंडीशंस पे आप क्रेडिट दोगे तो ये पुअर पीपल वंडर्स करके दिखाएंगे, ये पुअर पीपल मिल के इकोनॉमी का डेवलपमेंट करके दिखाएंगे, राइट। तो ऐसा ही ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश ने किया। आप देखिए चैप्टर की समरी आ गई है आपके लिए। समिंग अप में अगर हम बात करें कि इस चैप्टर में हमने क्या क्या डिस्कस किया, सो जस्ट हैव अ लुक। In this chapter, we have looked at the modern forms of money and how they are linked with the banking system. हमने पढ़ा modern forms money की क्या क्या है and how things are linked with the banking system. On one side are the depositors who keep their money in banks, on other side are the borrowers who take loan from the bank, right? एक तरफ होते हैं depositors जो अपना पैसा डिपॉजिट करवाते हैं बैंक में, और दूसरी तरफ होते हैं borrowers जो इन बैंक से क्या ले लेते हैं, लोन ले लेते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज रिक्वायर्स लोन्स और क्रेडिट। ये कह रहे हैं अगर आपको इकोनॉमिक एक्टिविटीज करनी है तो आपको लोन्स या क्रेडिट्स की जरूरत पड़ेगी। Credit, as we saw, can have a positive impact or in certain situations make the borrower worse off. याद है क्या आप लोगों को? कोई बता सकता है क्रेडिट कौन सी सिचुएशन में पॉजिटिव इम्पैक्ट आ सकता है और किस सिचुएशन में बोरोवर को वर्स ऑफ कर सकता है? दो नाम है यहाँ पे, हमने दो लोगों के एग्जांपल्स डिस्कस किए थे। एनीवन हु कैन टेल मी? ओके, सहल विल गिव द आंसर। हाँ जी बच्चा बताइए। Yes, ma'am. I have studied that in the Salim's स्टोरी Salim story, the credit plays a vital and positive role. While in Sapna's story, credit pushes her in the debt trap. Very good. We have discussed the story of Salim and Swapna, where in case of Salim, he was able to produce more shoes. है ना? He was able to fulfill the order and he was able to complete the order of manufacturing shoes and during the festival time only because of credit. But in case of Swapna, she has borrowed money, but due to poor weather, she was unable to repay the loan. So credit put her into worse condition. But in many cases, credit can help the people to grow. Mostly the business organization, they have grown only because of credit facility. They have taken loan from somewhere and today they are successful only because they have borrowed from the market. Now have a look. Credit is available from a variety of sources, basically two sources, formal and informal. Terms of credit vary substantially between formal and informal lenders. Terms of credit अलग-अलग होती है formal lenders में और informal lenders में. At present, it is the richer household who receive credit from formal sources, whereas the poor have to depend on informal sources. Current की अगर हम बात करें तो richer section of society जो है उनको credit ज़्यादा मिल रहा है formal sources से. Poor people informal पे ही depend है. It is essential that total formal credit increases so that dependence on the more expensive informal becomes less. ये जरूरी है कि हमारी कंट्री में क्या हो, formal sector spread हो ताकि informal पे dependence कम हो. Also, the poor should get a much greater share of formal loans from bank, cooperative societies, etc. Both these steps are important for development. ये कह रहे हैं poor के development के लिए ये जरूरी है कि poor को informal sector से loans मिल सके, easily available हो सके. चलिए, so we have completed our chapter number 3 of